السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ آرائی میں ایک کمی آئی تھی پچھلے دنوں، کچھ مہینوں سے لگ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ شاید غیر جانبدار ہو گئی ہے اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اب ہلکا ہاتھ رکھنا شروع کیا ہے۔ سخت تقاریر نہیں ہو رہی تھیں، اب سخت تقاریر بھی ہو رہی ہیں، اور پی ڈی ایم کے گزشتہ جو سربراہی اجلاس ہوا اس میں بھی تحریری طور پر جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں اسٹیبلشمنٹ کو اور ریاستی اداروں کو خبردار کیا گیا کہ وہ باز آ جائیں، اور جو کٹ پتلی حکومت کی، عمران خان کی حکومت کی جس طرح کی پشت پناہی کی جا رہی ہے اور جس طرح لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور بلیک میل کیا جا رہا ہے، فونیں کی جا رہی ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان نے بھی فون کا ذکر کیا ہے کہ حکومت کے لوگوں کو فونیں گئی ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ عمران خان کا ساتھ دیں اور وہ حکومت کو ووٹ دیں، نہیں تو پھر آپ کی یہ ویڈیو آئے گی۔ اور اپوزیشن کے لوگوں کو بھی فون کر کے کہا گیا کہ آپ لوگ نہ جائیں اور ووٹ کاسٹ نہ کریں عمران خان کے اس قانون سازی کے خلاف۔ تو اسٹیبلشمنٹ، مولانا نے یہ علل اعلان پشاور کے جلسے میں یہ کہا ہے۔ میں پشاور کے جلسے پہ آج میں نے مولانا کی جب تقریر سنی تو میں سیریسلی مجھے مطلب اتنا نہیں تھا کہ مولانا اتنا غصے میں ہوں گے جتنا پی ڈی ایم کی جماعتوں میں غصہ ابھی بڑا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ ایک مرتبہ پھر وہ مولانا کی تقریر سے جھلک رہا تھا۔ اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس تھا اس میں بھی خبردار کیا گیا تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ باز نہیں آ رہی سیاست میں مداخلت سے، اور توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ فیض صاحب جائیں گے تو اس کے بعد حالات بہتر ہوں گے۔ اب فیض صاحب چلے گئے ہیں تو حالات بہتر ہوں گے، تو پھر آنے والے دنوں میں چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن فی الحال پی ڈی ایم میں بہت غصہ پایا جا رہا ہے، اور پی ڈی ایم میں پھر تقاریر شروع ہو گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ مولانا نے جو سخت تقریر کی ہے، اس طرح کی شروع میں جب پی ڈی ایم بنا تھا تو اس وقت مولانا اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے تھے، لیکن بعد میں پھر درمیان میں معاملات اس طرح کے ہوئے کیونکہ ڈیولپمنٹس ایسی ہوئی تھی کہ پاکستان میں جو ضمنی انتخابات ہو رہے تھے اس میں اپوزیشن جماعتیں جیت رہی تھی، پی ٹی آئی ہار رہی تھی، نوشہرہ کا الیکشن ہوا، ڈسکا کا الیکشن ہوا، یا مختلف کراچی کا الیکشن ہوا۔ تو اس وجہ سے پی ڈی ایم کا یہ خیال تھا، کیونکہ ایک تو بیک ڈور رابطے تو ہوتے ہی ہیں، ہر وقت ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطے چل رہے ہوتے ہیں، رابطے بھی چل رہے تھے، اور ایک خیال بھی تھا، کچھ انفارمیشن ہوگی، کچھ تجزیہ ہوگا، کچھ عملاً جو اقدامات ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ان کو آبزرو کر کے پی ڈی ایم یہ اخذ کر رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ قدرے غیر جانبدار ہو گئی ہے، کسی حد تک وہ غیر جانبدار ہو گئی ہے۔ تو اب اگر غیر جانبدار ہو جاتی ہے، مداخلت نہیں کر رہی ہوتی، تو یقیناً پھر پی ڈی ایم بھی خاموش تھا، پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا ریاستی اداروں کے حوالے سے کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا تھا، لیکن اب جو کردار جوائنٹ سیشن میں، پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں قانون سازی میں اسٹیبلشمنٹ کا سامنے آیا ہے یا سننے میں آیا ہے، تو اس کے بعد پھر سیاسی ایک محاذ آرائی اور کشیدگی جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ اب آنے والے دنوں میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو سیاسی میدان ہے وہ مزید گرم ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کی تقریر میں آپ کو ان کے جو جملے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ مولانا نے ایک تو عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا اور ان پر شدید تنقید کی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ میں کہا، خبردار کیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس عمران خان کے بیک سے پیچھے ہٹ جائے، عمران خان کی پشت پناہی ختم کر دے۔ اگر پشت پہ کھڑی رہے گی اسٹیبلشمنٹ تو پھر ہمارا پتھر آئے گا، وہ عمران خان کو تو لگے نہ لگے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے سینے میں ضرور لگے گا۔ یہ مولانا کے الفاظ ہیں، اور مولانا نے
कहा कि हम इदारों का एहतराम कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि इदारे मुतनाज़ा हों या इदारों को सरेआम हम जलसों में डिस्कस करें। पाक फौज का इदारा काबिल एहतराम इदारा है, उसके वक़ार का एहतराम करना तो हम चाहते हैं कि, और हम ये भी चाहते हैं कि भाई गैर जानबदार भी रहे, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर नहीं, ये उन पर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रोफेशनल जिम्मेदारियां जो उनकी बनती हैं वो अगर अदा करेंगे तो फिर हमारे सर आंखों पे अगर वो प्रोफेशनल अपनी जिम्मेदारियां निभाने की बजाय दूसरों के काम में, दूसरे इदारों के काम में, पार्लियामेंट के काम में, सियासत के काम में, डेमोक्रेसी के काम में आइन से छेड़छानी, तो ये जो गैर आइनी इक़दामात हैं, गैर कानूनी इक़दामात हैं, सियासत में मुदाखलत है, ये बंद करनी पड़ेगी और ये हम आगे मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौलाना ने तो इशारा, मुझे तो ऐसा लगा कि शहबाज शरीफ, जरदारी साहब और मियाँ साहब की तरफ भी शायद मौलाना का इशारा था कि कोई मसलहतन, अगर किसी मसलहत की खातिर कोई खामोश हो जाता है और कोई किसी हुकूमत की मजबूरी की वजह से अगर खामोश हो जाता है, या कोई अपनी तरजीहात और अपने जो मफादात हैं उनकी वजह से खामोश हो जाता है तो हो जाए, लेकिन हमें न इक़्तिदार की लालच है और न हुकूमत की लालच है। हम अपने मैदान में हैं और हम ये जंग लड़ते रहेंगे, जारी रखेंगे। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से भी मैं ज़रूर बताता चलूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से भी ये इत्तलात आ रही हैं कि वो भी इसी तरह ही मौलाना फजलुर रहमान से भी ज़्यादा वो भी तपे हुए हैं, वो भी बरहम है, इस्टेब्लिशमेंट पे गुस्से में हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों की, मैंने पहले व्लॉग में बताया था, पार्टी के लोगों की भी क्लास ली है नवाज शरीफ ने भी, कि उन्होंने हुकूमत को टफ टाइम क्यों नहीं दिया पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, और हुकूमत आसानी से कानून साजी कराने में कामयाब हो गई। तो इस पर पूछगाछ की है मियाँ नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से भी, शायद खाकान अब्बासी और बाकी जो पार्टी के जो क्रीम है, जो नून लीग की जो मरकजी रहनुमा हैं, अहम जिम्मेदारान हैं, उनकी भी मौलाना मियाँ नवाज शरीफ ने क्लास ली है। अब पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी है, कहाँ पे स्टैंड कर रही है, पीपल्स पार्टी का इस हवाले से अभी जाहिर है पीडीएम में वापसी, तो पीपल्स पार्टी की मैं इस पे अगले प्रोग्राम में बताऊंगा कि वाकई पीपल्स पार्टी वापस आ रही है या नहीं आ रही। लेकिन पीपल्स पार्टी का फिलहाल पीडीएम से कोई ताल्लुक नहीं है। पीपल्स पार्टी का जो सीन बना था पार्लियामेंट के अंदर वही सीन बना था, और मेरा तजिया ये है कि पार्लियामेंट में जब अपोजिशन जमातें अभी रिसेंटली इस पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले जिस तरह सरगर्म हुई, जिस तरह एक्टिव हुई, जिस तरह एक सरगर्मी जो एक शुरू कर दी, एक हंगामा खेज सरगर्मी अपोजिशन की नजर आ रही थी। सुबह से रात तक मुसलसल इजलास चल रहे थे, आपस में राबते में थे, अपने मेंबरान की गिनती की जा रही थी, रोजाना बार बार गिनती की जा रही थी कि बंदे पूरे हैं किसके नहीं है। बड़ी सबको कहा, हिदायत जारी की जा रही थी कि भाई अपनी अपनी पार्टियों के मेंबरान की जिम्मेदारी पार्लियामानी लीडर्स की होगी, चीफ व्हिप की होगी, वो पूरी करेंगे। मेंबरान तो उनके चले आ गए, 8 मेंबरान मिस थे, वो कुछ मजबूरियों की वजह से, लेकिन अपोजिशन ने जितनी हाइप क्रिएट एक अपोजिशन की हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है, शायद कोई तहरीक अदम एतमाद वजीर आजम के खिलाफ आ सकती है, शायद अपोजिशन नाकाम बना देगी हुकूमत की कानून साजी को। हालांकि माजी में मुश्तरका इजलास जो होते हैं, ज्वाइंट सेशन जो होते हैं, उनमें ज़्यादातर हुकूमत नाकाम अमूमन नहीं होती, क्योंकि दोनों जब ऐवान मिल जाते हैं, कौमी असम्बली और सेनेट, तो हुकूमत की अक्सरियत हो ही जाती है। तो इस मरतबा ये था कि कुछ चंद वोटों का फ़र्क था, डिफरेंस था, तो समझा जा रहा था, एक तसुर था कि शायद अपोजिशन गालिब आ जाएगी और अपोजिशन हुकूमत को नाकाम बना देगी, शिकस्त दे देगी, हुकूमत कानून साजी करने में नाकाम हो जाएगी। इस तरह ऐसी हाइप क्रिएट हुई थी, तो वो कोई चीज़ नहीं हुई। न अपोजिशन जीत सकी, न तहरीक अदम एतमाद का कोई सीन आया। क्या हुआ, किसने किया अपोजिशन में से,
वॉकआउट हो रहे थे, नहीं रोक पाए, मेंबरान पूरे नहीं थे। और जो 6 मेंबरान थे जिन्होंने गिलानी साहब को वोट दिया था, आज़ाद मेंबरान सेनेटर्स जो हैं, वो भी हुकूमत की तरफ चले गए। कैसे चले गए? जब अपोजिशन लीडर सेनेट में जो है यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके वोटर हैं, तो वो हुकूमत की तरफ कैसे चले गए? तो इस सारी जो पूरी जो सूरत हाल है, इसका मैंने जायजा लिया है। और फिर मौलाना की तकरीर, फिर पीडीएम के इजलास का, रियासती इदारों को खबरदार करना, मौलाना की तकरीर में मौलाना की सख्त लबोलहजा, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद ये कड़ियाँ कड़ियों से बंदा मिलाता है ना, तो कुछ चीज़ें समझ में आती है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन की गेम इस्टेब्लिशमेंट ने ख़राब कर दी। जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जिस तरह मौलाना बार बार कह रहे हैं, पीडीएम के इजलास में भी कहा गया, तकरीर में भी मौलाना ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने फोने कर करके लोगों को ब्लैक मेल करके दबाव डालकर उनको वोट दिलवाया है इमरान खान को। नहीं तो इत्तेहादी तो नाराज थे, एमक्यूएम भी नाराज थी, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि भाई हम नहीं देंगे। काफ लीग ने ऐलान कर दिया था कि हम वोट नहीं देंगे, काफ लीग के लोगों ने। तो इस्टेब्लिशमेंट ने जाहिर है अपना काम दिखा दिया। और इस्टेब्लिशमेंट ऐसा लग रहा है कि अब भी जो एक तसुर था ना कुछ अरसा पहले तक, 2-3 महीने से ये तसुर था कि इस्टेब्लिशमेंट शायद गैर जानबदार हो गई है, इमरान खान के बैक से शायद पीछे हट गई है, पुश्तपनाही से। ऐसा नजर नहीं आ रहा। अभी जो सीन नजर आया ज्वाइंट सेशन में, और फिर मौलाना और पीडीएम का जो रद्द-ए-अमल इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आ रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के खुफिया इकदामात के हवाले से, तो इसमें से ऐसा लग रहा है कि सारी गेम खराब अपोजिशन की जो हुई है वो इस्टेब्लिशमेंट ने की है। कैसे? मसलन हो सकता है शहबाज शरीफ से राब्ते हो गए हों, हो सकता है बिलावल साहब से राब्ते हो गए हों, किसी न किसी से तो राब्ते यकीनन होते हैं ना। तो ये मेंबरान पूरे न हो सकना, या वॉकआउट कर देना, हुकूमत को मौका फराहम कर देना कि हुकूमत कानून साजी आसानी से कर दे, तो ये सारी चीज़ें ये गलत फैसले थे। सेनेट में बंदे पूरे नहीं कर पाए जहाँ पे अक्सरियत है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई न कोई अपोजिशन में से इस्टेब्लिशमेंट के साथ शायद ऑन बोर्ड है, जिन्होंने ये काम उनके जरिए ही होता है ना। मेंबरान अपोजिशन के लीडरों से या पार्टियों से या मेंबरान से राब्ते किए जाते हैं, तो उन्होंने उनके जरिए शायद काम जो है अपोजिशन का बिगाड़ा है, जिसकी वजह से अपोजिशन की जो जमातें हैं इस वक्त, मासवा पीपल्स पार्टी और एएनपी, इनको फिलहाल न अपोजिशन में गिना जा सकता है न हुकूमत में। ये न इधर के हैं न इधर उधर के, तो ये एक दरमियान में खड़े हैं, पीपल्स पार्टी भी और एएनपी भी, न अपोजिशन के साथ न हुकूमत के साथ। तो इनकी उनको तो छोड़ के बाकी जो जनवन अपोजिशन है, मौलाना फजल रहमान है, नवाज शरीफ है, बाकी जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं, उनमें इस वक्त बहुत गुस्सा और नफरत पाई जा रही है। और आने वाले दिनों में लग ऐसा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीडीएम की और पीडीएम की जमातों की महाजाराई मजीद तेज होगी। और ये जो तहरीक और जलसे जुलूस मुजाहरे अब इमरान खान के बजाय दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ शुरू होंगे। और पहले जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक मोमेंटम बनाया था, मियां नवाज शरीफ ने सख्त तकारीर करते थे, आर्मी चीफ का, DGISI का नाम लेते थे, तो दरमियान में फिर मियां नवाज शरीफ भी खामोश हो गए थे कई महीने। और कश्मीर के इलेक्शन में भी उन्होंने कोई तकरीर नहीं की थी, कोई सख्त तकरीर उनकी नज़र नहीं आ रही थी, सुनने में नहीं आ रही थी। अभी तो मियां नवाज शरीफ पे तो पाबंदी है, वो तो मीडिया पे चलते नहीं है, उनकी तकरीर चलती नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ज़ाहिर आ जाती है लोगों तक। और मौलाना की तकरीर पे पाबंदी तो नहीं है, मौलाना की तकरीर तो चल रही है। उनकी तकरीर से भी अंदाज़ा हो रहा है कि मामलात अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, और आने वाले दिनों में ये मज़ीद बिगड़ने का इम्कान या अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।